My patient Mrs. Khalda, wife of Mr. Tariq, 40 years of age, educated till 8th class, resident of Narowal, admitted through OPD, Hamid Latif Hospital on 15 March 2018. Her last menstrual period is 26th of February 2018. Her blood group is B positive. She is married for 20 years and para 0+0. Presented with lower abdomen pain for 6 to 7 years and primary subfertility 19 years. She was in usual state of health 7 years back when she developed gradually lower abdomen pain occupying the right and left iliac fossa and hypogastrium. Pain was dull and continuous in nature, and it was not radiating anywhere. And during the she had no pain-free interval in that. Pain was not associated with micturition and defecation. However, its intensity increased during menses, and it was worse at the end of the menstruation. She gave history of deep dyspareunia, and pain stays even for 3 to 4 hours after the coitus. And her menstrual cycle is regular with average flow. She soaks 2 to 3 pads per day. No history of postcoital or intermenstrual bleeding, and no history of vaginal discharge, and no history of feeling of mass in abdomen, and no history of increased frequency dysuria or hematuria or fever associated with that. She doesn't give history of intermittent diarrhea, and she gives history of laparotomy 12 years back in CMH Okara for acute abdomen, and according to her, ovarian cystectomy was done. And however, she doesn't know the detail of the surgery and histopathology report. And regarding her subfertility, first 12 years of marriage, she had investigation and treatment. Her husband's urinalysis was normal, according to her, but however, she doesn't know the detail of the morphology, count, motility, and she had ultrasound abdomen done, in which she was told that uterus is normal and there is no adnexal pathology. And she had diagnostic laparoscopy at CMH Lahore, in which she was told that both the tubes are patent 15 years back, before laparotomy. And she took treatment from various hakims, doctors, and health visitor, but she never conceived. Now, patient came for the treatment of pain, and she has no fertility desires. Regarding her gynecological history, she has. सारा कुछ ठीक है, चले आगे फिजिकल एग्जामिनेशन बता दीजिए. So, on general physical examination, pallor was negative, jaundice was negative, and thyroid was not enlarged, and no lymph nodes were palpable. And by lateral breast examination, no lump was felt in all the quadrants of the breast. And her blood pressure was 130 by 80 millimeter of Hg. Her pulse was 80 beats per minute, and temperature was normal at that time. And her orodental hygiene was normal, and on auscultation of chest, no added sound was found. On abdominal examination, on inspection, she's an obese lady. She had protuberant abdomen, and on inspection there were no stria or any visible scar marks. Although laparotomy के सर वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था. On visible scar marks, and on local examination, vulva was normal looking, and vagina was also, vulva was normal looking, no discharge at the introitus. And on pars speculum examination, cervix was normal looking, and vaginal walls were also normal looking. And on bimanual examination, uterus felt like 6 to 8 week size, and tender and fixed retroverted, and fullness in the left adnexia. And मैं हिस्ट्री से आगे हम चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट.
तो मैं ब्रीफली मेरे कमेंट जो है अबाउट हर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन वो मैं कह देता हूँ। अब ये एक पेशेंट है जिसकी एज है 40 पैरा हाँ 40 years. 40 year old and para 0 plus 0 or married for many years, 19 years or so. उसकी दो कंप्लेंट्स हैं, दोनों को ज़रा और एलेबोरेट करना चाहिए था इनको। दो कंप्लेंट्स क्या हैं? एक तो पेन है, पेन लोअर एब्डोमेन, जो इन्होंने कहा राइट इलिक फोसा, लेफ्ट इलिक फोसा और सेंटर, इट मीन सारा लोअर एब्डोमेन। ये कहने की शायद ज़रूरत नहीं थी कि राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, सेंटर, तो फिर वो फ़र्क तो ना हुआ, कंटिन्यूस लोअर एब्डोमेन में हुआ। सो वो इन्होंने कहा राइट इलिक फोसा लेफ्ट, वो कहने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक तो है इसके पेन, उसके अलावा दूसरी है, अब उसकी कंप्लेंट नहीं है वो, लेकिन सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी कही है उसको। ये दो हैं। पहले इन्होंने काफ़ी डिटेल में ही बताया पेन के मतलब, लेकिन कितने साल से ये पेन? 6 to 7 years. 6 to 7 years है। अब इस 6-7 साल में इन्होंने कहा नॉट रिलेटेड टू डेफिकेशन, नॉट रिलेटेड टू मिक्चुरेशन, ये बोले अल्फाज, रिलेटेड टू क्वाइटस, डीप डिस्पायूनिया इन्होंने बोला। तो और ये तीनों इन्होंने फंक्शंस के साथ रिलेट तो कर दी, लेकिन मैं ये कैसे जानूं कि 6-7 साल में कि वो पेन एग्जैक्टली सेम रही है? ये ज़रा अनलाइकली सी सिचुएशन है कि लगातार 7 साल से उसको दर्द है, लगातार, विच गेट्स वर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, लगातार उसको दर्द है और वो दर्द ना बढ़ी है ना कम हुई है, एग्जैक्टली सेम। मैं मान लेता हूँ आज की कहानी में, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होगा। फिर इन्होंने कुछ ऐसे फोकस नहीं, कुछ उसकी इन्वेस्टिगेशंस बोली, लेकिन मेरी नज़र में कंप्लीट नहीं बोली। अगर पेन लोअर एब्डोमेन है किसी को, ये कह दें हिस्ट्री में हो गई, फिर बाबा 7-8 साल से उसको दर्द है, उसका कहिए। इन्होंने एक दफ़ा बोला कहीं अल्ट्रासाउंड कि ड्यूरिंग 7 years she has been repeatedly investigated for this pain by urine analysis, by maybe sigmoidoscopy या colonoscopy या जो भी, and by जो भी गायनिकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन उसकी हुई, कम से कम सोनोग्राफी तो बार बार हुई होगी। इन्होंने ये लफ्ज़ नहीं बोला रिपीटेड अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी आपके पेशेंट की कंप्लेन है इतनी लंबी, या तो है ना 6-7 दिन से है, आप प्रोज्यूम करेंगे कि 6-7 दिन में उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, पहले आप डॉक्टर हैं, प्राइमरी डॉक्टर, वो तो मैं मान लूँ, फिर भी उसमें कहना ज़रूरी है। आज की ये दूसरी टिप समझिए, जो पेशेंट की कंप्लेन हो उसके रिलेटेड प्रेजेंट हिस्ट्री में ही बोलिए, प्रेजेंट हिस्ट्री में ही बोलिए। ये आपको इस तरह नहीं बताया जाता, इस तरह सिखाया नहीं जाता। जब आप प्रेजेंट हिस्ट्री बोल रहे हैं उसमें ही बोलिए अप टिल नाउ शी हैड दिस इन्वेस्टिगेशन। इसका कम से कम रिपीटेड अल्ट्रासाउंड तो जरूर हुआ होगा, रिपीटेड अल्ट्रासाउंड इन विच अकॉर्डिंग टू हर स्कैन पे यूट्रस भी नॉर्मल है, एडनेक्सा भी नॉर्मल है, ये इन्होंने बोला है। अभी नहीं, ये प्रीवियस जब सब फर्टिलिटी की थी वो बता। चलो जो उजेजत भी हुआ, जो फाइंडिंग है अगर पता है आपको बोलिए कि फॉर दिस पेन शी हैड
repeated ultrasound, which initially was reported normal, but last one or someone जिसकी abnormality आई है कि that showed enlarged uterus or cystic mass on the left side or whatever. इसमें तो बल्कि आप अगर you are clever enough, you will say she had abdominal ultrasound and TVS. क्योंकि TVS is more sensitive for these patients, particularly when she gets deep dysbieunia. जब आप TVS कह के बोलेंगे तो एग्जामिनर को समझ आएगी कि आप कॉन्शियस है इस फैक्ट के कि इसलिए कौन सा स्कैन इसके लिए बेहतर है। और जाहिर है कि ये पेशेंट जो है जो बिकॉज द फर्स्ट डायग्नोसिस पेशेंट में जो 6-7 साल से है नॉन गायनिकोलॉजिकल वुड बी यूटीआई सिस्टाइटिस। शी हैड रिपीटेड यूरिनरी टेस्ट व्हिच वर रिपोर्टेड नॉर्मल और नो इन्फेक्शन। और फिर इन्होंने डेफिकेशन रिलेटेड बोला डायरिया, डायरिया का लफ्ज़ बोला इन्होंने, है कि नहीं? हालांकि वो डायरिया अगर उसको हुआ वो तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, आप जाके बाहर खाना खाते हैं, वो क्या रोड है MM आलम रोड पे, अगले दिन उतने बहुते पैसे भी दे के आने और अगले दिन टॉयलेट भी बार बार जाने। दिस हैपन्स नॉर्मल। हम यूसुफ का ससुर वो उनको बड़ा शौक है MM आलम रोड का। उन्होंने कहा ये 4-5 दिन पहला उते गए तो 2 दिन बिस्तर चो नहीं उठा, उन्होंने ड्रिप लगी, उन्होंने उल्टियां आईयां तो पता नहीं की होया, पता नहीं की होया। तो हमारे मुल्क में हाइजीन जो है, फूड हाइजीन वो इतनी अच्छी नहीं है। डजंट मैटर वेदर यू गो टू 5 स्टार और सम। वो बेचारी वो नहीं थी एक जो फूड अथॉरिटी की थी, जाके हर किचन को सील करती जाती थी। हाँ, उसको अगले ने हटवा दिया बिकॉज शी वॉज कैचिंग एवरीबडी। अगर आप अपने घर का किचन जाके देखें वो साफ नहीं है अनलेस यू कीप विजिटिंग अगेन एंड अगेन। मेरी माँ को आदत थी वो सुबह उठ के पहला काम किचन जाती थी और इनवेरिएबली कोई गंदी प्लेट बाहर पई हुई है या कोई थोड़ा बहुत सालन बाहर रह गया या कुछ जो रोटी बच गई वो बाहर पड़ी सूख रही है, ये कुछ ना कुछ उसको मिल जाता था मेरी माँ को। और फिर लाइन लगा के ना उनको वो डांटती थी क्या अनबिलीवेबल। एक दफा मैं घर से निकला, when I was practicing gynecology and obstetrics, अब तो करता ही नहीं, I was a busy doctor। एक सुबह मैं घर से आया, सारा दिन बिजी रह गया, फिर सारी रात किसी के पेशेंट में बिजी हो गया, अगले सुबह भी ना गया। फिर अगला दिन जब दोपहर आया ना, मेरे घर के मुलाजिम बैठे खाना खा रहे थे, मेरी माँ गई उन्हें डंडा चुकिया। अच्छा कि मेरा पुत्र जड़ा है कल दा गया है, उन्हें एक रोटी नहीं खाधी, तुसी 5वीं रोटी खा रहे हो, तुसी 5वीं रोटी खा रहे हो। तो दैट काइंड ऑफ, तो हमारा भी घर का किचन नहीं साफ। सो इन्होंने डायरिया का लफ्ज़ बोला, वो डायरिया इस पेशेंट में ज़रा इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर एंडोमेट्रियोसिस डीप इनटू द रेक्टम, डीप इनटू कोलन होता तो उसके साथ उसको टिनिस्मस होता, उसको पेन होती, वो है या नहीं वो ज़्यादा रेलेवेंट होती है इसमें कहने की। तो ये प्रेजेंट हिस्ट्री में ये 2-3 बातें और भी थी बहुत सारी, फिर हम आगे चलते हैं। बस इन्होंने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में बोला नो जॉन्डिस, नो पेलर, नो लिम्फ नोड, नो। जनरली स्पीकिंग अल्लाह बड़ी खास आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को जॉन्डिस है, होना चाहिए, हेपेटाइटिस है,
फिर कही है नो वाली बात। अदरवाइज जो पॉजिटिव फाइंडिंग है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की वो आप बोलिए, वो आप बोलिए। तो इसमें फिजिकल फाइंडिंग नो पेलर की बजाय कंजंक्टिवा पिंक, टंग इज पिंक, पॉजिटिव जो नजर आ रहा है बाबा, है ना। इस तरह थायराइड नॉट एनलार्ज, एडिमा जो अगर स्टैटिक पेशेंट नॉट प्रेजेंट आप प्रेजेंट। सो इन्होंने सारा नो 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 करके बोला। चलें, अब उसके बाद दूसरी बात पेन के अलावा थी इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी। मैं बेसियों दफा कहीं यहीं इस क्लासरूम में कह चुका हूँ, अगर आपके पास सब फर्टिलिटी का केस आए, जो कि वेरी गुड चांस, चूँकि बड़ी आम है, मरीज भी आसानी ना मिल जाते हैं वो, तो आपने बोलना है। अभी अभी आपको बताया गया है कि प्रेजेंट हिस्ट्री में फॉर सब फर्टिलिटी शी हैड दीज इन्वेस्टिगेशंस, शी हैड her husband's semen test, which according to her was reported normal. Good enough. Good enough. How many patients remember the count, motility, unless it is a lady doctor or something? For her subfertility, she had her husband's semen test. According to her, she claims it was normal. First. Or she says it was subnormal. Or she tells you that the sperms are absent. She will not use the terminology azoospermia, but she can say this, कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है जी। पहला ये इन्वेस्टिगेशन आपने बोली। नंबर दो, इन्होंने नहीं बोली, she did not have any hormone test for ovulation. एग्जामिनर को पता हो कि आपने इनफर्टिलिटी के ये टेस्ट करने हैं, और अगर हुआ है तो वो जो नाम बताती है बताइए। शी हैड प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट डन, शी हैड बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्ट, शी हैड जो भी किया है या नहीं किया। नेक्स्ट, for her tubal patency, she had no tests done. Or for tubal patency, she had hysterosalpingography, which according to her, tubes were normal. According to her, history है बाबा, ये नहीं बोले इन्होंने। जब ये इन्वेस्टिगेशन बोल रहे हैं आप, उसके बाद नेक्स्ट हिस्ट्री में आपने बोलना है what treatment she had up till now। भी 40 साल दी हो गई है, 20-22 साल हो गए ब्याह नू, ये तो ना कहे ना कोई इलाज ही नहीं हुआ, तो उन्हें जरूर किया होगा। She had tablets for induction of ovulation। एग्जामिनर कह सकता है कि आपको कैसे पता चला कि वो इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन की टैबलेट, कि मैडम मेंसेस के 5 दिन लिए, वो क्लोमिफेन सिट्रेट होती है या जो भी है। Up till now, she had no treatment, no allopathic treatment for her subfertility. हकीम, होम्योपैथ, वैद, पीर, फकीर सबके पास गई, डॉक्टर के पास भी गई। बहुत सारी गाँव के पेशेंट्स हैं, ऐसा ही होता है। और आजकल वो 5 दिन की गोलियां हर कोई दे देता है। तो शी हैड इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन बाय टेकिंग टैबलेट्स फॉर 5 days। आप एग्जामिनर को खुद ही बता रहे हो कि आपको पता है इंडक्शन इस तरह होती है। और शी हैड IUI, IVF, ये वो वगैरह जो भी पूछे तो सही ना बाबा, अब तक इन्होंने नहीं पूछा। सो ये यहाँ पे ख़त्म करेंगे आप। और भी 2-4 बातें थी, लेकिन विल गो ऑन टू ट्रीटमेंट। कि इस पेशेंट में देयर आर 2 कंप्लेंट्स, वन इज पेन, सेकंड इज सबफर्टिलिटी। चाहे उसकी अब वो बॉदर्ड है या नहीं है, लेकिन
थी तो सही ना। और मुमकिन है कि आपके पास आने के बाद वो कहे कि नहीं डॉक्टर साहब इधर भी कुछ कर दो। बहुत होते हैं जो 40 के बाद भी आते हैं, कहते हैं इधर भी कुछ करो। तो अगर इधर भी कुछ करना है तो आपको पता तो होना चाहिए अब तक क्या हुआ। तो ये आज की बड़ी इम्पोर्टेंट टिप है कि जो पेशेंट की कंप्लेंट हो उसका आपने इसी में ही जिक्र करना है कि up till now for this complaint she had these investigations and that treatment, ताकि आपको जब आप ट्रीटमेंट तक पहुंचे तो आपको पता हो ये हो चुका है, मैं ना करूं दोबारा। अगर कुछ भी नहीं है उसका, लेट्स से कि ये एंडोमेट्रियोसिस है और इस पेशेंट ने आज तक कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लिया 6 साल में, मुमकिन हो सकता है, क्यों नहीं, कि मैं दर्द की गोली खा लेती थी बस, और कुछ नहीं दिया मैंने, और किसी ने कुछ नहीं दिया मुझे। तो आप वहां से शुरू करेंगे फिर जहां से आपकी किताब में लिखा हुआ है एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट। अगर वो नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंट और ये वो सारा कुछ कर चुकी है, फिर दोबारा क्यों करांगे असी? फिर 6-7 साल में वो फेल हो गया ट्रीटमेंट, he has not achieved desired results. Desired results would have been pain relief and fertility. वो तो ना हुए, तो हम उससे एक स्टेप आगे चलेंगे, फिर रहने दो, जरूर उसको फिर हमने हार्मोनल ट्रीटमेंट जोलोडेक्स पे डालना है, जरूर आपको आना पूरा चाहिए। 1, 2, 3, 4 मैं एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट दोहरा ही देता हूँ आपके साथ। एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट है पहले पेन रिलीफ, पेन रिलीफ तो जनरल पेन रिलीफ जो कहीं पे भी है, पैनाडोल है, एस्प्रिन है, जो भी है वो देंगे हम। देन स्पेसिफिक नॉन हार्मोनल एंड हार्मोनल, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज सर्जिकल ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव सर्जरी एंड रेडिकल सर्जरी इन द सेंस के फिर हिस्टेरेक्टमी, फॉर हर दैट विल बी रेडिकल एनीवे। ये है ट्रीटमेंट, ये है ट्रीटमेंट। So when in the examination it comes to treatment, तो आप का जो स्कैन है आपका कंप्यूटर वो यही करेगा कि ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है 24 मार्च को हमने जाना था, पेन रिलीफ लाइन थले, पेन रिलीफ एनी ड्रग। नंबर 2 नॉन हार्मोनल, हार्मोनल, उसके बाद सर्जिकल है, कंजर्वेटिव सर्जरी एंड रेडिकल सर्जरी, ये आपने बोला। तो अब उसने जो जो इसमें से कर चुकी है वो, और फॉर सफिशिएंट ड्यूरेशन, ये तो नहीं 1 साइकिल लिया था, तो 6 साल से तो उसको पेन है बाबा, तो काफ़ी लंबा ही लिया होगा उसने, तो जो जो लिया है उसको काटती जाओ। मैडम शी हैड नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट और शी हैड फिर हार्मोनल में कंबाइंड पिल से शुरू करके डायनाजोल से तक जाके फिर GnRH एनालॉग्स तक ले जाके ये सारा कुछ कर चुकी हुई है। Hence we come to surgery. सर्जरी से पहले मैं काउंसल करूंगी, उसकी ये 2 काउंसलिंग सर्जरी इज इम्पॉसिबल इन व्यू ऑफ हर
लॉन्ग इनफर्टिलिटी, एज 40 साल, 7 साल की पेन, सर्जरी 2 तरह की हो सकती है, बट आई विल सजेस्ट दोनों नाम लेके, कंजर्वेटिव भी हो सकती है और रेडिकल भी हो सकती है, बट इन व्यू ऑफ अ लॉन्ग हिस्ट्री, all medical treatment tried, I will suggest number 1 hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy. क्योंकि यहाँ ना फर्टिलिटी का कोई रोल रह गया है, ना कोई एज 40 होते हुए। हाँ, अलबत्ता if she declines, जो 90% चांस है, which if she declines to have hysterectomy, then I'll do conservative surgery. वो क्या, वो लेप्रोस्कोपिकली, चूँकि कोई इन्होंने ख़ास फाइंडिंग नहीं बताई, अंदर कोई बड़ी सिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेप्रोस्कोपिकली वी कैन स्टेज endometriosis 1, 2, 3, 4 and accordingly perform surgery. अगर वो सिर्फ स्टेज 1, 2 है, डिजियोलाइसिस, बर्निंग, अगर 3, 4 है, जो जहाँ एंडोमेट्रियोमा प्रेजेंट है उसकी एक्सीजन, एंड ऑफ कोर्स इफ यहाँ पे आपकी डिस्कशन 5 मिनट के लिए इम्तिहान में, 5 मिनट बड़े होते हैं, 5 मिनट के इम्तिहान में ये होगी कि ये 40 साल है, इसकी बायलैटरल ओपेरेक्टमी करोगे कि नहीं करोगे। Here is a patient who is got endometriosis. आप इसकी she gives consent for hysterectomy. आप देखते हो दोनों ओवरीज हेल्दी हैं और यूट्रस इन्होंने बताया था रिट्रोवर्टेड अडेरेंट है, तो आप मोबिलाइज करोगे, यूट्रस को उठाओगे और देखोगे एंडोमेट्रियल स्पॉट्स ऑन रेक्टम, ऑन कोलन कितने हैं, हाउ टू डील विद देम, and then you'll do hysterectomy, which can be done laparoscopically, LAVH, or conventionally. फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप ओवरीज दे लुक हेल्दी। आज बायलैटरल ओपेरेक्टमी यहाँ से शुरू हम करते हैं, तो किसी दिन शुरू से भी कर लेंगे, लेकिन आज यहाँ से शुरू करते हैं। दे लुक हेल्दी, विल यू रिमूव देम और नॉट रिमूव देम, एनीबडी? गुड। बचा इनको देना जी, वो है हमारे पास। वो sir, as my patient's age is 40 years of age and there is no previous history of any cyst removal or cystectomy or no history of even cyst present, or no history of family history of ovarian carcinoma, and during laparotomy or during hysterectomy ovaries are looking healthy bilaterally, and I will preserve the ovaries. वेरी वेरी गुड, माशाल्लाह। कहाँ से आई हो? लाहौर जनरल हॉस्पिटल। सब लाहौर जनरल दिया ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਂ ਲਿਆ। Good answer, but still somebody else. नहीं, तो आप आपका जवाब बिल्कुल सही है। Don't get upset with my comment. तो मेरा कमेंट ये है कि नहीं, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट है इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, और एंडोमेट्रियल स्पॉट्स इधर उधर कहीं ना कहीं होते हैं, इसलिए जस्ट रिमूवल ऑफ द यूट्रस will provide complete relief only if endometriosis is present in the uterus.
नॉट ऑन द पेरिटोनियम, नॉट एनीवेयर एल्स। एंडोमेट्रियोसिस तो कहीं पे भी हो सकता है, लंग में हो सकता है, नाक में हो सकता है, मसल में हो सकता है, और कहीं नहीं। फिर तो रिमूवल ऑफ यूट्रस, कंजर्विंग ओवरीज इज ओके, बट any patient who has completed her fertility, और उसको ओवरीज की जरूरत नहीं, उसमें बेस्ट ये है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, जो बेस्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, रिमूवल ऑफ ओवरीज देन HRT। उसमें बेस्ट ट्रीटमेंट ये है। पर मैं आपके ट्रीटमेंट से क्यों इत्तेफाक करता हूँ, अपने मुल्क में HRT बड़ा मुश्किल काम है। आप सबकी घर में कितने हैं जिनकी सास जिंदा है? और हम दुआ मांगिए इकट्ठे होके, दुआ मांगे, ऐसा टेलीफोन बंद करना। Yusuf's wife has gone to Multan to attend a friend's daughter's wedding. वो परसों गई, तो मैं जब क्लिनिक आ रहा था, हमारा एक ग्रुप है जो डॉक्टरों का ग्रुप, जो 35 साल पहले बना, बड़ा वी आर क्लोजली निट फैमिली। जब हमने ग्रुप बनाया था उस वक्त थे 7 हम डॉक्टर्स, 7 उनकी बीवियां। अब 5 डॉक्टर फौत हो चुके हैं, सिर्फ 2 डॉक्टर रह गए, 7 बीवियां रह गई। वो 7 की बड़ी आपस में दोस्ती है। तो मैं क्लिनिक आ रहा था, वो सारे तलत को मिलने आई हुई, दे वर हैविंग टी एंड गॉसिप। मेरी सोच अजीब सी है वैसे। मैं कार में बैठा तो मैंने कहा ये 7 मदर्स इन लॉ बैठी हैं, बातें कर रही होंगी आपस में, जरूर डॉटर इन लॉ की। फिर मुझे फौरन ख्याल आया कि मेरी डॉटर इन लॉ मुल्तान गई हुई है, और उसकी माँ का फौरन टेलीफोन आया होगा 5 घंटे बाद, तुम माँ खैरियत से पहुँच गई हो। और वो फिर कह रहे हो कि देखा मेरी माँ ने टेलीफोन किया, सस ने नहीं किया। मैंने क्लिनिक पहुंचते ही मैंने तलत को टेलीफोन किया कि खैरियत, मैं क्या तू हिनानू टेलीफोन करके वो पहुंच गई है? खैर कह दी मैं ऑलरेडी कर चुकी हैं, वो पहुंच गई है। तो मैं घर गया तो मैंने कहने की तेन कि तू ख्याल आया कि तू मैनू टेलीफोन करे, मैं हिनानू टेलीफोन कर मैं क्या, ये इस तरह की सिचुएशन देख के मुझे लगा कि जैसे आप डॉटर इन लॉ की बातें कर रहे होगे, वहाँ मदर इन लॉ की बात हो रही होगी। तो वो यू मस्ट अप्रिशिएट कि मैं बात घुमा के सोचता ज़रूर हूँ, सोचता ज़रूर। खैर, तो बात थी आपकी, तो ये कि complete treatment of surgical treatment of endometriosis is removal of ovaries, because they are the culprit, they produce hormones. जहाँ जहाँ स्पॉट है वो रिस्पॉन्ड करता है टू द हार्मोन्स, ग्रो करता है। इसलिए असल ट्रीटमेंट तो ये है, बट एट द सेम टाइम एड HRT. However, generally, like 40-year-old, they don't agree to it. They don't agree to the removal of ovaries. आपने कहना है with HRT कहना है, but if she doesn't agree, then I will. फिर वो सारी आपकी बैकग्राउंड बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह, कि उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उसका कोई पर्सनल हिस्ट्री नहीं है कैंसर की, तो इसलिए, और ओवरीज हेल्दी हैं,
इसलिए उनको कंजर्व कर लूँगी। समझे? तो उसमें हम ऐड करेंगे जो आपने कहा कि for complete treatment of endometriosis, even if the ovaries look healthy, it's better to remove them. But if we remove them at the age of 40, she requires she will go into surgical menopause and she will require HRT. अगर हमारे ख्याल में ये पिंडो आई है उन्होंने HRT की तलब नहीं, वो फिर कॉस्ट फैक्टर भी आ जाता है और वो सारी बातें हैं. Then I'll explain to her that because the ovaries look healthy, she has no past. She has no past history, whatever. Hence, I will conserve ovaries. फिर आपका जवाब मुकम्मल है और सही. ठीक है, चलें. अब ये पेशेंट जो है, चूँकि अरूबा यहाँ बैठी है, शी इज एंडोस्कोपिक सर्जन, तो हम कहेंगे प्रेफरेबली विल डू laparoscopic surgery. Or for particularly endometriosis, laparoscopic surgery is better than conventional laparotomy because it gives us magnified image. और कन्वेंशनल लेपारोटमी में वो क्लैरिटी ऑफ पिक्चर नहीं आती, which is going down into the pouch of Douglas, surface of rectum and whatever. Hence, my preference will be laparoscopic LABH and BSO. और साथ बोलिए, which will get you 1 mark extra. 6 की बजाय 7 हो जाएंगे. Then I'll also look around in the pelvis for any spots of endometriosis and burn them as well. तो आज की डिस्कशन के लिए मैंने समराइज कर दूं. पहला, हिस्ट्री टेकिंग में मैं बार बार यही फंस जाता हूँ, बल्कि मैं अब कोशिश करता हूँ कि जल्दी से उसमें निकल के कोई मैनेजमेंट की भी बात करूँ. तो चूँकि मेरी कम पता नहीं क्यों मेरी सुई फंसी हुई है, वहाँ कभी तसल्ली नहीं होती किसी हिस्ट्री से. और आई पर्सनली फील कि आप फेल पास ही हिस्ट्री पे होते हैं. अगर आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस सही बनाया हो और उसके मुताबिक सही हिस्ट्री ठीक ली हो और ये, तो फिर आप वहीं पे पास हो जाते हैं. मैं यहाँ पे हुआ कि हियर इज अ पेशेंट जिसने हिस्ट्री ये दी, एक पेन लोअर एब्डोमेन और दूसरा सब फर्टिलिटी. और मैंने बोला इतनी लंबी हिस्ट्री में आपने पूछना है अप टिल नाउ what investigation patient had for pain. वो कहेगी कुछ नहीं, लिख दीजिए. She had no, up till now, no investigations. और if she had 6-7 साल में कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, तो वो बोलिए. She had urinary tract investigation like urine test, cystoscopy और IVU. पता नहीं क्या हो सकता है. और she had GIT investigations like proctoscopy, sigmoidoscopy, colonoscopy, scopy. आप गायनिकोलॉजिकल वो तो आप कहते ही हैं कैप्टन नाउ ये हुआ इसका. और इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर ट्रीटमेंट. फॉर दिस पेन she had oral contraceptive pill for 6 months. She had injection Zoladex 6 months or 3 months. उसका रिजल्ट जो भी था उस ट्रीटमेंट का, जो अब तक ट्रीटमेंट हुआ, with that she had relief of pain
she had no relief of pain, or she had relief for some time, but the pain came back. यहाँ इस पेशेंट की शायद लेप्रोटमी भी हुई थी. उस लेप्रोटमी की फाइंडिंग्स बोलिए कि she doesn't know the findings. She had laparotomy for pain, but she doesn't know findings. Or she claims there was a cyst on the left side which was removed. साथ बोल दीजिए बेशक, she is not sure whether it was cystectomy or oophorectomy. इस तरह के अल्फाज बोलेंगे आपका नंबर 1 बढ़ जाएगा. क्योंकि ये 2 ऑपरेशन हो सकते हैं ना, अगर सिस्टी या सिस्टेक्टमी या ओफरेक्टमी. And subsequently, the pain persisted in this patient. The pain persisted. फिर आ गए हम उसकी सब फर्टिलिटी पे. She has been married for 25 years. Up till now, no pregnancy. For this, husband semen analysis was done. एक दफा हुआ तो तब, repeatedly हुआ तो कब, last. And patient claims semen was normal. Patient claims semen was subnormal. Patient claims there were no spermatozoa. पेशेंट की जुबान में लिखना ना, हमने एजोस्पर्मिया नहीं लिखना. फिर for this she never had any allopathic treatment for subfertility, और जो भी उसने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, जो कुछ लिया, अगर कोई ART IVF हुआ है तो उसकी थोड़ी सी तफसील बोल दीजिए फिर, जो कहना मुमकिन है इसमें हुआ ही हो. She had IVF treatment at such and such place. She doesn't know the details, but it was not successful. Or she had IVF treatment at such and such place. She had long stimulation by long protocol, or stimulation by gonadotropins. पहले down regulation, then stimulation. थोड़े से ये अल्फाज बोलेंगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपको इस बात का पता है कि IVF में क्या होता है. Or she had short protocol for stimulation. Then she doesn't know how many eggs were picked up, but she did not have ET or embryo transfer because the eggs did not grow, or fertilization did not take place. Or she had ET, single embryo transfer, 2 embryos, 3 embryos, rest were frozen. ये ऐसे अल्फाज बोलेंगे जो थोड़े एग्जामिनर को नहीं पता तो आपके इतने अच्छे नंबर हो जाएंगे. इसको तो बहुत आता है. सो ये आपने हिस्ट्री में बोलना है, ट्रीटमेंट में नहीं कि वो पूछे ART क्या होती है. आपने खुद बता दिया हिस्ट्री में that 5 years ago she had IVF or ICSI, जो भी नाम हुआ, treatment, but it was unsuccessful. However, she had induction of ovulation by long protocol. She had embryo transfer 1, 2, 3 जो भी, frozen embryos 1, 2, 3 और none. आपने जब हिस्ट्री में ये सारा बोल दिया तो उन्हें एग्जामिनर ने तो उनकी पूछना, उसको तो इससे ज्यादा आता ही नहीं. आप पास हो, आप पास हो, फिर कोई नहीं रोक सकता फिर आप. ये हिस्ट्री मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें ये सारा कुछ डालिए. तो आज का बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंडेड ये है कि जो पेशेंट की कंप्लेंट हो
heavy menstrual bleeding. Up till now, she had no investigation. She had hemoglobin test done, which showed hemoglobin 6.4 gram %. एग्जामिनर को समझ आएगी कि जो आपके पास हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आएगी, आपको उसकी हीमोग्लोबिन करवाएंगी, क्योंकि लाइकली है वो अनेमिक हो जाएगी. एंड हर हीमोग्लोबिन वाज दिस एंड शी हैड ट्रीटमेंट बाय जो भी उसका वही नॉन हार्मोनल, हार्मोनल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट. नॉन हार्मोनल, she had transamine, she had Deflon, she had Ponston Fort, hormonal, oral contraceptive, progestogens only. और she had DNC, जो भी होती है. और she had hysteroscopic surgery. जो ये आप हिस्ट्री में बोलेंगे बाबा, हिस्ट्री में बोलेंगे तो ये डिस्कशन से बच जाएंगे आप. उसको पता है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का आपका केस है, आप क्या करेंगे. आप खुद ही बता रहे हैं कि अप टिल नाउ उसकी हीमोग्लोबिन जरूर चेक करवाएंगे और उसको कोएगुलेशन प्रोफाइल करवा लेंगे. ये ब्लड टेस्ट हो गया उसके अगर आपका ख्याल है कि वो हार्मोनल अपसेट है तो मे भी वो भी करवा लेंगे. फिर ट्रीटमेंट में क्या एंटी कोएगुलेशन देते हैं दवाइयाँ, या फिर कंबाइंड पिल देते हैं, या प्रोजेस्ट्रोजन देते हैं. और उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट में आ गया कि हिस्टोस्कोपी करते हैं, कोई पॉलिपी है वो निकाल देते हैं, या फिर उससे भी ठीक नहीं हुई फिर हम आ गए कि एबुलेशन करेंगे उसकी. और उससे भी पहले IUCD डाल देंगे, कॉपर टी, तो क्या है वो मरीना डाल देंगे और उसकी एबुलेशन करेंगे एंडोमेट्रियम की. उसकी फिर लेप्रोस्कोपिकली हिस्टेक्टमी करेंगे और कन्वेंशनल हिस्टेक्टमी करेंगे. हिस्टेक्टमी करते हुए ओवरीज को रिमूव करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे. मुकम्मल हो गए. फिर उन्हें की पूछने तुम, फिर और क्या पूछेगा. तो फर्क ही नहीं है. हाँ हाँ नहीं, ये आज की जो मैंने गाइडलाइंस दी है आपको कि आपने हिस्ट्री में ये डाल देना है. इट विल हेल्प यू अ लॉन्ग वे इन योर डिस्कशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट. क्योंकि आपने खुद वो बता दी इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट जो आखिर में उसने पूछना था. एग्जामिनर ने आपसे आपने खुद ही बता दिया सारा कुछ. चलिए कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए. चलो बस करो. अच्छा वो देखें, ले इनका सवाल सुन ले, ये रिकॉर्ड करें. So my patient is married for first time 4 years ago, and my patient was married 4 years ago, and that lasted for 2 years, and she had a primary fertility in that marriage. Again, she was second time married almost 2 years ago, and she's again having primary fertility in second marriage as well. Sir, in this case, what would be the presenting complaint that she is fertile for 4 years or for 2 years? ये सवाल पूछने से पहले ही आप ऐड करिए, दिस पेशेंट हैज बीन मैरिड ट्वाइस. पहला फिक्र है ये, दिस पेशेंट हैज बीन मैरिड ट्वाइस. फर्स्ट मैरिज वाज फ्रॉम ईयर 2010 to 2012.
Then after a gap of 1 year, the second marriage was 2014, 2018 or whatever. Agla, during during this period, she has failed to conceive in both marriages. हो गया. अब अगला, during her first marriage, semen test was done. पहले खामोदा भी तो important है ना. During first marriage, semen test was done. It was normal. However, her tubal patency test was not done, but ovulation test was done. Yeah, not done. No specific investigations were carried out during first marriage. जो होता है, बगैर इन्वेस्टिगेशन के ही डिवोर्स हो गई. मुंडा साड़ा ठीक है, इन्हों घर भेजो. होता है. और फिर जब दूसरी शादी होती है फिर वो बड़ी जल्दी आ जाती है आपके पास. ये भी एक सवाल ऐड कर लीजिए. ड्यूरिंग सेकंड मैरिज शी comes to you after 6 months. She is anxious. कि इसमें भी मेरा वही हाल ना हो. Would you do investigation? Or would you not? We will do. We will do, particularly if first husband was normal. बाबा नॉर्मल था तो 2 साल फिर भी टेस्ट ना हुए. अब 6 महीने ये भी ऐड हो गए. तो मैं तो उसकी एंग्जाइटी के लिए और अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए मैं तो करूँगा इसमें इन्वेस्टिगेशन उसकी. तो वो इन्वेस्टिगेशन क्या होंगी? वही जो मैं पहले बता चुका हूँ, ओवुलेशन के टेस्ट. She never had any ovulation test. She was advised to keep temperature chart, basal body temperature chart. Or she had P4 test done on cycle day 21. Or she had only FSH, LH and AMH or ultrasound पे follicular count, ovarian reserve. बस जो भी टेस्ट हुए हैं बाबा, ये तो ओवरी के हो गए. फिर आगे ट्यूब्स का. She had high COSI, ultrasound guided tubal patency test done. She had radiological HSG, hysterosalpingography done. Or she had laparoscopy, or she had hysteroscopy. ये 4-5 नाम बोल दीजिए. अगर आप बहुत चालाक हो, तैयब हो, तो फिर आप बोलो, ये नाम बोलो. For patency, she neither had ultrasound patency test done, nor radiological hysterosalpingography test done, nor laparoscopy or hysteroscopy. आपका नंबर 1 ऊपर. क्योंकि जो एग्जामिनर ने, बात यह है, प्रीएम्प्ट करने वाली बात है. जो एग्जामिनर ने के दिमाग में आप पहले ही बोल दो और फिर ये बोल के एग्जामिनर हो जाएगी चुप. मैंने जितना पढ़ाने का अंदाज सीखा है वो सारा प्रोफेसर लास्ट, जिन्होंने एक एनाटमी की किताब लिखी, प्रोफेसर ऑफ एनाटमी थे वो, R.J. लास्ट. मैं उनका फैन हूँ, मुरीद हूँ. मेरे बड़े मेहरबान थे. मैंने उनको बहुत करीब से देखा हुआ है, लास्ट साहब को. तो उनका ये अंदाज था पढ़ाने का जो मैंने पुअरली अडॉप्ट किया है. वो तो इतना खूबसूरत पढ़ाता था ना बंदा, अनबिलीवेबल ऐसे पढ़ाते थे वो. तो मुझे याद है प्रोफेसर लास्ट आए, उन्होंने एक दिन बोर्ड पे एक ऐसे ज़माना चौक ब्लैक बोर्ड का एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर. व्हाट्स दिस? उनका वाइट लाइन. नो. व्हाट्स दिस? उन्होंने क्या, chalk line on blackboard. Oh, क्या straight line, ये line, वो line. No. सारे मुक्त गए ना ज्यादा.
कहता दिस इज इंट्रोसियस मेम्ब्रेन ऑफ फोरआर्म। इंट्रोसियस में मुझे आज तक वो लेक्चर याद है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन ऑफ फोरआर्म। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने मसल्स बना दिए, बोन्स बना दी, ऐसी खूबसूरत। वो ही वाज गुड एट ड्राइंग। वो इस तरह से पढ़ाते थे, इस तरह से पढ़ाते थे। तो मैं हॉस्टल में रहा 6-8 महीने। वो हर वीकेंड पे मियाँ बीवी थे, वार्डन थे हॉस्टल के। दैट्स हाउ आई केम टू नो हिम। तो 2 से 4 लड़कों को कॉफ़ी के लिए बुलाते थे एट 8 PM। अब लड़के 8 बजे पहुंच गए। वो दोनों को, मियाँ बीवी को, गप्पे मारने की इतनी आदत थी, इतना बोलते थे, इतना बोल, इन कंपटीशन आपस में। तो और जब रात दे बजने ना 2 मुंडे और वासियां आ रही हैं, और ये हम देखे, oh you're sleepy, we haven't had coffee yet, we haven't had coffee। और मतलब इतनी गप्पे मारते थे वो, ब्यूटीफुल। तो sama मेरी थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी उनके साथ। तो मैं तो 5-6 दफ़ा उनके फ्लैट में गया कॉफ़ी पीने के लिए। तो बोथ वर फुल ऑफ नॉलेज। अब बीवी चेन स्मोकर थे, और लास्ट साहब नस्वार खाते थे। कहता मैं चेन स्मोकर, मैं भी था इसकी तरह। ठीक है, मैंने सोचा सिगरेट छोड़ो, सिगरेट फिर आ गई महीने बाद, 2 महीने। कहता मैं कहता ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, मोनो तंबाकू ऑल्टरनेटिव है। सो पेशावर की नस्वार बेस्ट, जो पाकिस्तान से आता हम कहते हैं नस्वार लेके आए। और लेक्चर देते वो डब्बी, वो नहीं नस्वार वालों की होती, वो रखी होती थी, डब्बी काट दे, फिर एक लाल रंग का रुमाल, फिर लेक्चर जारी। ब्यूटीफुल मैन ही वाज। खैर, वो यहाँ से मुझे लास्ट याद आया। वो कहते ना, हमें बताते कि इस सवाल का, ये मैंने कहा ना उनसे सीखा मैंने। वो बताते कि ये सवाल होगा इम्तिहान में, तुमने ये जवाब देना, इस तरह से बताते हैं। तो अक्सर कहते जब कि when he asks you this question, tell him this, then look into the eyes of the examiner and say shut up, say shut up। मतलब उसका मतलब ये होता था कि तुमने ये पूछा, मुझे आता है, पूछो ऐसा सवाल जो ना आता हो ना। वैसे दूसरा ये भी कहते हैं कि तुम्हें कोई सवाल पूछे और तुम्हें ना आता हो, डोंट कीप क्वाइट, डोंट कीप मम, से सर योर नेकटाई इज ब्यूटीफुल, से समथिंग, चुप ना रहो। तो नहीं, मैं जब पार्टमान FRCS का इम्तिहान देने गया, तो दैट वाज 1965, नई जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की। मैं जाके बैठा तो मुझे कहते हैं डॉक्टर कैन व्हाट डू यू थिंक ऑफ कश्मीर। फिजियोलॉजी का वाइवा तो पूछते ने कश्मीर, मैं चुप। कहते हैं यस टेल अस व्हाट डू यू थिंक ऑफ कश्मीर। जब तीसरी दवाई में चुप रहा, नाल एग्जामिनर कहने लगा डॉक्टर कैन इज नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर, ही इज इंटरेस्टेड इन फिजियोलॉजी, आस्क हिम समथिंग। मैं क्या, मैं कश्मीर इतने बहस करा, मेरा वक्त ज़ाया हुए है, पास से होना तो जो बताया गया उस पर, तो से समथिंग। और ये जो मैंने बातें आपको कही, आप हिस्ट्री में इस तरह से कवर कर लेंगे तो एग्जामिनर को पता है कि आपने ट्यूबल प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करनी है, सब पता है आपको। आपने ओवुलेशन इंडक्शन कैसे करनी है, इनफर्टिलिटी की क्या क्या और बातें क्या है, आपको पहले ही पता है। फिर वो पूछेगी क्या, फिर आप इनफर्टिलिटी पे फेल कैसे हो सकते हो। Isn't it common कि लोग फेल होते हैं यूट्रोजन प्रोलैप्स पे, लोग फेल होते हैं फाइब्रॉइड पे, लोग ये कोई बातें हैं फेल होने वाली। फेल होते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी पे, अगर नॉर्मल आ जाए वो खतरनाक है,
इम्तिहान में, क्योंकि एग्जामिनर कैन पुल यू इनटू एनी डायरेक्शन जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो आपके साथ हाइपरटेंशन पूछेगा ना, जब कुछ भी नहीं है वो कहता है लेट्स प्रिज्यूम हर ब्लड प्रेशर इज 140/90। बिल्कुल ये आपके लिए एक्सटेम्परे होगी, नवी गाल होगी। You had not thought of hypertension in pregnancy. इसलिए नॉर्मल में भी कोई ना कोई कर दो, वो तो कद ही छोटा कर दो। कहो जी ਇਹਦਾ ਕੱਦ 4 ਫੁੱਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। मैं गोडिया ते खड़ी की थी। कोई ना कोई तो हर एक में होता ही है ना, बाबा निकालो। If the patient has taken treatment for a very short duration, if the patient has taken certain important treatment for a very short duration, will we skip that treatment in our management? Supposedly, in the case of subfertility, she has taken ovulation induction just for 1 cycle. Afterwards, she had certain complication and she stopped that treatment. When I am managing that patient, I am telling that she had just 1 cycle of ovulation induction, and then in my management, will it be included? Starting from ovulation induction? आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। If she had some treatment and it ended up in complication, like hyperstimulation हो गई उसको, या दूसरी तरफ कि वो उसने ट्रीटमेंट लिया लेकिन इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन हुई ही नहीं, नो फॉलिकल्स, नो ग्रोथ ऑफ एग, तो वो बात। और अगर उसने एक ट्रीटमेंट दिया उसको रिजल्ट नहीं पता, और तो फिर ये कहिए कि बिकॉज शी हैड ओनली 1 कोर्स ऑफ क्लोमिफेन सिट्रेट, आई लाइक टू कंटिन्यू दैट। हाँ ये अच्छा हो गया आपने बोलिया, किसी और का ट्रीटमेंट इस वजह से ना छोड़ दो कि वो उन्हें देता सी मैं नहीं देता, उसी अगे फिर राइट ट्रीटमेंट, गुड ट्रीटमेंट, कंटिन्यू। She had 1 course of induction of ovulation, and during that it was not monitored whether the stimulation was there or not. I'll continue but monitor for response। वो मॉनिटर है TVS से, वो मॉनिटर है E2 लेवल से, एस्ट्राडियोल लेवल से, वो जो भी जिस तरीके से कर सकते हैं आप। I'll continue and monitor the patient for response of the treatment। अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव है कंटिन्यू कीजिए उसी को। पहली दवा उसने 1 गोली क्लोमिफेन सिट्रेट की 1 रोज की ली, नो रिस्पॉन्स। आपने 2 की रिस्पॉन्स है, फिर उससे अगले प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन हम 2 पे ही कंटिन्यू करेंगे, 2 पे ही कंटिन्यू करेंगे, चूंकि दवाई का काम तो इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन है, प्रेगनेंसी नहीं है। हम ट्रांसलेट करते हैं प्रैक्टिकली इन लाइफ कि 2 गोलियां खा दिया प्रेग्नेंट नहीं हुई, 3 कर दो, फिर 4 कर दो, फिर ये नहीं। क्लोमिफेन सिट्रेट का काम है ओवुलेशन, नॉट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का ना होना कोई भी एंडोमेट्रियम रिलेटेड, एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव नहीं है, तो दवाई तो ना फेल हुई। So I'll continue clomiphene citrate and monitor. If response is there, I'll continue same stimulation dose till pregnancy is achieved. Or if after repeated success of ovulation pregnancy doesn't take place, I'll like to investigate endometrium, maybe sperm karyotyping, और जो भी है कोई वजह निकालेंगे हम, वजह निकालेंगे। और उसमें और ये वजह IVF कैन बी डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्म को इकट्ठा रख लेते हैं, अगले दिन जाके देखते हैं कि वो स्पर्म फर्टिलाइज किया कि नहीं किया। अगर फेल्ड फर्टिलाइजेशन है,
Fault could be with the sperm, fault could be with the ovum. तो उसके लिए फिर टेस्ट ये है, वो हस्बैंड के स्पर्म को किसी और के ओवम में लेबोरेटरी में रखो और बीवी के एग को किसी और स्पर्म में रखो, उनमें से जो फेल हो जाए इसका मतलब फेलियर वाज बिकॉज ऑफ ओवम और बिकॉज ऑफ स्पर्म। फिर उसका आगे जो भी इक्सी या जो भी अभी नीड नॉट गो इनटू, अभी आपके लिए इतना इसी लेवल पे काफ़ी है। सो आईवीएफ कुड बी डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक। ये उसकी इन्वेस्टिगेशन में अगर आप बोलोगे वहाँ तक बात पहुँची है तो यू नो इट एंड यू शुड पास। वो देव जी माइक। One of my patients had a gigantic fibroid of 28 centimeter, 28 size fibroid. She was nulliparous and she was divorced because of fertility, and she wants remarriage again after 1 year or so. So she wants definitive management as well of her that much fibroid. I think the main cause of her infertility was that big fibroid. No, don't say that. She has a fibroid. Doesn't necessarily mean that fibroid is responsible for fertility. ये यहाँ तक आपकी बात सही है, हमने प्रूव नहीं किया अभी तक, तो इसलिए नहीं। आपकी बात को थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करके इस तरह से कहूँ फिर आपकी बात सही हो जाएगी। I'll find out the location of fibroid, not size. I'll find out the location of fibroid, whether it is distorting uterine cavity or not. It is not the size. It was. वो ये नहीं कहा था ना आपने, मैंने तभी रोक दिया था आपको। तो if the fibroid is disturbing uterine cavity, distorting it, फिर आपका वो जवाब हो जाएगा कि इसको ठीक है प्री मैरिटल या शादी के फौरन बाद फाइब्रॉइड को निकलवा दो, बिकॉज इट इज डिस्टर्बिंग और डिस्टॉर्टिंग यूट्राइन कैविटी, कुड बी इंटरफेयरिंग विद रिसेप्टिविटी ऑफ एंडोमेट्रियम एंड फर्टिलिटी। अगर फाइब्रॉइड सब सीरियस है, बाहर है, देन इट इज नॉट। हाउएवर प्रेजेंस ऑफ, आपने लार्ज फाइब्रॉइड बोला, प्रेजेंस ऑफ लार्ज फाइब्रॉइड could create physical difficulty for the baby to grow, इसलिए उस फिजिकल साइज की वजह से ताकि स्पेस अवेलेबल रहे टू द बेबी, आई विल डू मायोमेक्टमी बिफोर मैरिज और इमीडिएटली आफ्टर मैरिज। So in this case, what I will offer to my patient before marriage or after marriage, she wants it get it done before marriage. तो कर दीजिए। So there is a very high much chances of hemorrhage and leading to. चूँकि सर मैं यहीं पे जवाब दे दूँ तो नहीं, if there is a large fibroid, whether it should be removed before marriage or after marriage, this is a social question which should be discussed with the patient. Both are okay. Both are okay. I am not saying before marriage must or after marriage must. चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में किसी लड़की का ऑपरेशन हुआ हो, चाहे अपेंडिक्स ही हुए, किसी लड़की का ऑपरेशन शादी से पहले हुआ, ਉਹਦੇ नंबर कट जाते हैं, ਉਹਦੇ नंबर कट जाते हैं, तो उसका सो प्रपोजल जो है उसके कम हो जाते हैं। ये सोशल प्रॉब्लम, ये गायनी की वेस्ट की लिखी हुई किताब नहीं है, हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए अगर इस तरह की सिचुएशन हो, आप पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, मैं तो बड़ा फ्रैंकली डिस्कस करता हूँ कि मुंडे वाले नाश्ता नहीं जाएंगे, ये सुन के मैं इस तरह पूछता हूँ, जी भाग जाएंगे, वो बड़े हुआ इंजीनियर। फिर मैं कहना कुड़ी थोड़ी सोहनी है, चाहे ना भी सोहनी हो, उन्होंने सोहनी कहना चाहिए। तो कुड़ी थोड़ी सोहनी है, पढ़ी भी लिखी है, लेडी डॉक्टर भी है,
और वगैरह है लाइन तो लगी होनी है, वो जान दो दूजे ने फाड़ लो, ये वो इस तरह की बात करता हूँ। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं डॉक्टर साहब ये क्या पोस्टपोन हो सकता है, ऑपरेशन शादी के बाद हो सकता है, मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर मैं साथ उनको सोशली करेक्ट ये भी बताता हूँ, फिर ऐसा ना हो कि शादी के फौरन बाद अगर आप ऑपरेशन करवाएंगे वो कहें सानू धोखे च रखा। ये इस तरह की बातें, ये सोशल बातें हैं, सोशल काउंसलिंग है, ये कोई हार्ड लाइन नहीं है, हार्ड लाइन नहीं है कि नहीं ज़रूर शादी से पहले करवाओ या शादी के बाद। मैं कहानी सुना देता हूँ, इन्हें बंद करो। तो